Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is functions and design issues of the network layer. So from today onwards, we are starting the layer number 3 in the OSI model, that is also known as the network layer. So let's start the discussion with the introduction to the network layer. So as I told you, network layer is the layer 3 of the OSI reference model. Network layer is responsible for source to destination delivery of packets across multiple networks. तो लेयर 2 पे क्या थे हम सेम नेटवर्क के अंदर काम कर रहे थे इन लेयर 2, जिसमें हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस था और विद इन द सेम नेटवर्क हम जो है अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। और डेटा जो ट्रांसफर होता है ऑन लेयर 2, इट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेम्स। लेकिन if you want to connect two different networks, two different subnets with each other, then we need to move to the layer number 3, because connecting the multiple networks and delivering the data from one network to the other network is the responsibility of the network layer. So connecting multiple networks and deciding the best path from source to destination, means source network to the destination network, is the responsibility of the network layer. The network layer lies between the data link layer and the transport layer. तो ये दोनों के बीच में सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल लेयर के बाद है डेटा लिंक लेयर के बाद है हमारे पास नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के ऊपर है ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज लेयर नंबर 4 इन द ओएसआई मॉडल. तो बेसिकली द नेटवर्क लेयर, it is it lies in between the transport layer and the data link layer. So accept the services from the lower layer and provide the services to the upper layer. तो सोर्स साइड पे क्या होगा, सोर्स पे ये सर्विसेज लेगी ट्रांसपोर्ट लेयर से और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी डेटा लिंक लेयर को, और डेस्टिनेशन साइड पे इसके ऑपोजिट होगा, द नेटवर्क लेयर will accept the services from the data link layer and will provide the services to the transport layer. So this is a small example revealing the functionality of the network layer. So इसमें we have multiple networks. As you can observe, the computer is connected with the router B, and we have multiple networks like C, E, and they are connected through the links. And the network layer, the responsibility of the network layer is to deliver the data from one network to the other network, और उनके बीच में मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं. तो source to destination delivery is the responsibility of the network layer across the multiple networks. तो जैसे आप देख ही सकते हो with reference to the OSI model diagram, this is the source. Data is passed from the physical layer to the data link layer on the source side, and on the destination side it is delivered from the network layer to the data from the receiver side, it will be delivered from the physical. So this is the destination, and let's assume या इसको source मान लेते हैं. This is the source. Network layer provides the services to the data link layer provides the services to the physical layer, और receiver side पे या destination side पे क्या है, the physical layer provides the services to the data link layer and data link layer provides the services to the network layer. तो hierarchical communication है, लेकिन peer entities एक दूसरी की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करती हैं. तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नेटवर्क लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू डिलीवर द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो सोर्स और डेस्टिनेशन मल्टीपल जो है डिफरेंट नेटवर्क्स पे प्लेस्ड हैं. सोर्स किसी और नेटवर्क पे है और डेस्टिनेशन किसी और नेटवर्क पे है. तो मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन करना, शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करना और सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी करनी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर. तो नेटवर्क लेयर lies in between the data link layer and the transport layer, as we have already discussed. Talking about the functions of the network layer,
Network layer mainly provides 5 types of functions. The first is internetworking. Internetworking means combining the multiple networks. So let's assume that this is your source and this is your destination. तो source और जो destination है, they are on the different networks. वो different networks पे हैं and there exist multiple paths, multiple routes from source to destination. Source और destination आपके अलग अलग networks पे हैं. Let's assume that source is on network 1 and the destination is on network 2, and there exist multiple paths from source to destination. तो सबसे पहला काम है मल्टीपल लेयर्स को कनेक्ट करना, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, एंड कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग. तो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क्स विद ईच अदर. अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जो सबनेट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई टोकन बस कर रहा है, कोई टोकन रिंग कर रहा है. तो जो इंटरनेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है दैट इज above over all these things, कि हो सकता है कि जो आपके different networks हैं they might be using the different technologies, but your network layer should not be affected by this thing. So the main responsibility is to connect the multiple networks, चाहे वो networks अलग अलग technologies use कर रहे हो. The second is routing. So as I told you, there exist multiple paths. Let's say path 1, path 2, and up to path n. So there exist multiple paths from source to destination. And choosing the best path, the shortest path among all the available path is called routing. तो पहले पहले स्टेप पे क्या करेगी नेटवर्क लेयर, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगी. दूसरे स्टेप पे ये जितने भी अवेलेबल पाथ होंगे उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेगी और जो है उसको कहते हैं हम राउटिंग. तीसरा जो मेन फंक्शन है दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग. अब लॉजिकल एड्रेसिंग मींस, अब देखिए मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. इंटरनेटवर्किंग में मल्टीपल नेटवर्क्स हैं और मल्टीपल होस्ट कैन बी देयर इन अ सिंगल नेटवर्क. तो होस्ट टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो रही है. जब होस्ट ने डेस्टिनेशन को डेटा भेजना है जो दोनों अलग अलग नेटवर्क पे हैं और उनके बीच में पता नहीं कितने नेटवर्क्स और भी एग्जिस्ट करते हैं. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट द डेटा, हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें ईच एंड एवरी मशीन ऑन द नेटवर्क. तो नेटवर्क पे मशीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग. तो हर मशीन को हम लॉजिकल एड्रेस असाइन कर देंगे. हर मशीन का जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो यूनिक होगा और नेटवर्क पे मींस नेटवर्क लेयर पे हर मशीन की जो आइडेंटिफिकेशन होगी दैट विल बी इट्स लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस. So every connected node will be having its IP address. So IP address have two versions, IPv4 and IPv6. IPv4 and IPv6 we will be discussing these in the coming lectures. So logical address is the unique address that is used to identify a machine uniquely over the network. The fourth functionality is packetization. Packetizing. So it means what the network layer will do, it will receive the data. It means it will receive the data in the form of frames from the data link layer and it will construct the packets from the frames. Now, packet is again a logical unit of the data and each packet contains two things, control information and actual data or payload. कंट्रोल इंफॉर्मेशन में रहता है कि सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, हेडर की लेंथ कितनी है, डेटा की लेंथ कितनी है, एरर चेकसम मेथड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें रहती हैं आपकी पैकेटाइजेशन पैकेट के कंट्रोल इंफॉर्मेशन में और डेटा में होता है एक्चुअल डेटा. देन द फिफ्थ फंक्शन इज फ्रेगमेंटेशन.
Fragmentation means sometimes some network does not support the entire packet. कभी कभी ये हो जाता है, कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऐसा होता है जो क्या होता है कि एक पैकेट को फुली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है दैट इज नॉट एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। तो उस केस में नेटवर्क लेयर को क्या करना पड़ता है, अपने पैकेट को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करना पड़ता है, एंड दो स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। Now, talking about the services provided to the transport layer, नेटवर्क लेयर जो है वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर को जब हम बात करते हैं अबाउट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, तो जो उसके तीन मेन गोल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो पहला मेन गोल है नेटवर्क लेयर का, टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, इज द सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सबनेट टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो आपकी नेटवर्क लेयर है, इट इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क्स विद ईच अदर। अब जरूरी नहीं कि वो जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं वो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। तो द नेटवर्क लेयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सबनेट टेक्नोलॉजी। कौन सा नेटवर्क कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, नेटवर्क लेयर इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू कनेक्ट द डिफरेंट सबनेट्स विद ईच अदर, चाहे वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी शील्डेड फ्रॉम नंबर, टाइप एंड टोपोलॉजी ऑफ द सबनेट प्रेजेंट। तो दूसरा जो इशू है जो नेटवर्क लेयर हैंडल करेगी, वो क्या करेगी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से से इस चीज को हाइड करके रखेगी कि कितने नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स के टाइप क्या हैं, कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो नेटवर्क लेयर है वो शील्ड करेगी फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। The next goal is the network address available to transport layer should use a uniform numbering plan even across LAN and bands. तो उसको तो वो सॉल्व करता ही है थ्रू द लॉजिकल एड्रेसिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, नेटवर्क लेयर जो है वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड एंड अनरिलायबल कनेक्शनलेस। तो रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, सबसे पहले, नाउ सपोज दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, एंड बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द डिफरेंट सबनेट्स। तो हम ये मान के चलते हैं सोर्स और जो डेस्टिनेशन है वो डिफरेंट सबनेट्स पे हैं। तो इट मींस देयर एग्जिस्ट मल्टीपल नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन like this. तो सिर्फ मल्टीपल नेटवर्क ही नहीं एग्जिस्ट करते, मल्टीपल रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, लाइक दिस। तो इस तरह से मल्टीपल रूट एग्जिस्ट करते हैं from source to destination. So in a reliable connection oriented, before the transmission of the data from source to destination, first of all the path will be established. सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि अवेलेबल पाथ में से हम कौन सा पाथ यूज करेंगे, फिर उस पाथ को रिजर्व कर लेंगे, मींस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कोई और जो मशीन है वो इसको यूज नहीं करेगी। तो पाथ रिजर्वेशन कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बाद डेटा ट्रांसफर होगा, और डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होगा। तो अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंट लेस सर्विसेज में क्या होता है कि कोई पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। एवरी नोड टेक्स द डिसीजन ऑन द रन टाइम कि कौन सा पाथ लेगा। सपोज कीजिए इस पे आया पैकेट वन, तो पैकेट वन जो डेटाग्राम में है वो यहाँ पे डिसीजन लेगा आके कि वो इस रूट को फॉलो करेगा कि इस रूट को फॉलो करेगा, रूट नंबर वन को फॉलो करेगा कि टू को फॉलो करेगा। तो ये डिसीजन रन टाइम में होंगे। लेकिन रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में एक कम्युनिकेशन सेशन के इन बिटवीन ऑल द डेटा पैकेट्स विल फॉलो द सेम पाथ।
लेकिन अनरिलायबल कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता. So we have already discussed these terms many times in our previous sessions also. Now, talking about the internal organization of the network layer, तो दो अप्रोचेज यूज होती हैं. वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, और डेटाग्राम अप्रोच दैट इज कनेक्शन लेस सर्विस. तो इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द पाथ इस्टेब्लिशमेंट टेक प्लेस. उसके बाद पाथ इस्टेब्लिश होने के बाद सारा जो ट्रैफिक है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो सेम रूट को फॉलो करता है. और जैसे डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है, जो आपका कनेक्शन है वो रिलीज हो जाता है, वर्चुअल सर्किट है जो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो अब क्या होता है वर्चुअल सर्किट में, क्योंकि सारी जो कम्युनिकेशन है वो सेम रूट फॉलो करती है. मींस सपोज कीजिए क्योंकि रूट एस्टेब्लिश हो चुका है सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि हम सिर्फ यही रूट लेने वाले हैं लाइक दिस. तो इसमें क्या होगा, जो राउटर्स होंगे, जो इन बिटवीन द राउटर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, जो पैकेट यहां से चलेगा वो सिर्फ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को लेके चलेगा कि उसको पैकेट को पाथ कौन सा फॉलो करना है. इसके अलावा ज्यादा कंट्रोल इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी. वो सिर्फ ये लेके चलेगा कि उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है. और हर राउटर को ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी अपनी मेमोरी में कि किस सेशन के लिए कौन से राउटर को हमने डेटा को फॉरवर्ड करना है. तो एक लंबा चौड़ा उसको टेबल मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें हर वर्चुअल सर्किट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर आने वाले डेटा को किस नोड को ट्रांसमिट करना है वो भी पता होना चाहिए. लेकिन ये सारा फिक्स्ड रहेगा. सभी जो डेटा की लॉजिकल यूनिट्स हैं दे विल टेक द सेम पाथ, और वो सिर्फ डेटा यूनिट्स हैं जो सिर्फ वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन में पाथ की आइडेंटिफिकेशन लेके चलेंगी, क्योंकि जो पाथ है वो सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाता है और कहीं लेके जाएगा ही नहीं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस. पहली एडवांटेज ये है कि पैकेट में है जो वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन कम रहती है, जिससे कि पैकेट का जो साइज है उसमें कंट्रोल इंफॉर्मेशन कम होने से ज्यादा जो साइज है वो यूज हो जाता है डेटा के लिए. और राउटर को प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती कि हर पैकेट को खोल के देखें कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वो एक बार ही उस सारी चीजों को टेबल में स्टोर कर लेता है. तो कंजेशन कंट्रोल के लिए इनफ बफर रहता है. इजी डज नॉट कंज्यूम मच टाइम एज, क्योंकि टाइम कम लगेगा क्योंकि अब सारे पैकेट की प्रोसेसिंग नहीं हो रही. देन द टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, पाथ इस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है. राउटर्स को वर्चुअल सर्किट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है जिससे मेमोरी वेस्ट होती है. और अगर राउटर क्रैश हो गया तो पूरे नेटवर्क का जो है वो इट विल बी आउट ऑफ सर्विस, क्योंकि हर राउटर के पास इंफॉर्मेशन सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती है कि आगे किस राउटर को भेजना है. तो पाथ में कोई अल्टरनेटिव पाथ्स नहीं होते. अगर उस पाथ में से एक भी राउटर डाउन हो गया तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ेगा. तो दूसरी अप्रोच है डेटाग्राम अप्रोच. सो डेटाग्राम अप्रोच में हम क्या करते हैं, कोई पाथ नहीं स्टेब्लिश करते बिफोर द प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. रन टाइम में ही सारे डिसीजंस होते हैं कि किस टाइम पे कौन सा पाथ फॉलो होगा. तो इट इज मोर रोबस्ट एंड अडेप्टिव. बहुत रोबस्ट मींस ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा अडेप्टिव है. इस ये फेलियर को ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है और कंजेशन भी अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि रन टाइम में डिसीजन होगा जिस पाथ पे कंजेशन होगा वो पाथ यूज ही नहीं होगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. तो these are the some this is the basic concept of the datagram approach. Talking about the advantage, routing table takes the less memory क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करके रखते कनेक्शन की. कोई इसमें पाथ इस्टेब्लिशमेंट और रिलीज का काम नहीं करना पड़ता जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं होता. अगर कोई राउटर क्रैश हो गया तो क्रैश होने से क्या होगा कि उसके क्यू के अंदर जितने पैकेट्स हैं सिर्फ वही वेस्ट होंगे, बाकी कोई भी नुकसान नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम पे रूट है वो जो चेंज हो जाएगा. तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू बैलेंस द ट्रैफिक नो मच बेटर, कि अगर किसी पे कंजेशन हो गया है तो रन टाइम पे ही डिसीजन लेना है, उस पाथ को मत फॉलो करो जहां पे कंजेशन है.
लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच में क्या होता है, अगर कंजेशन है भी, अगर रिसोर्सेज हैवीली ऑक्यूपाइड हैं भी, फिर भी आप चेंज नहीं कर सकते रूट को, क्योंकि वो पहले से डिसाइड हो चुका है. So these are the some advantages of the datagram approach. Now talking about the disadvantage, क्योंकि हर पैकेट के पास बहुत सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, हर पैकेट बहुत कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो राउटर को हर बार हर पैकेट को ओपन करके देखना पड़ता है इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, जिसमें राउटर की काफी जो है प्रोसेसिंग और टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हर जो पैकेट है वो वो इंडिविजुअली ट्रीट होता है नेटवर्क पे, चाहे वो सेम सेशन को बिलोंग कर रहा हो. तो एड्रेस पार्सिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, क्योंकि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस इनके अलग अलग, इनका टोटली जो मैकेनिज्म होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. एंड कंजेशन आप कंट्रोल तो कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर कंजेशन को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन द डेटाग्राम अप्रोच. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ द नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो क्या है, उसका काम क्या है. देन वी डिस्कस the various functions in detail. Then we discuss the various service provided to the transport layer, types of services. Then we discuss the internal organization of the network layer. So that's all about today's session. I hope आपको नेटवर्क लेयर के बेसिक्स जो हैं और उसके फंक्शंस हैं जो वो क्लियर हुए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.